रनों का फासला रह गया। 5 बार के चैंपियंस और डिफेंडिंग चैंपियंस के बीच में 2 विकेट सुरेश शर्मा के, 1 कृणाल के नाम अपनी फॉर्मर टीम मुंबई इंडियंस के खिलाफ उनके घर पे एक सलाम की सफलता और एक जेकब डफी के नाम विकेट। 222 तक ही पहुंच पाई मुंबई इंडियंस की टीम। मैच जीता था अपने घर पे केकेआर को हरा के। रॉयल चैलेंजर्स और मुंबई हालांकि दोनों ही राजस्थान रॉयल्स से हार के आए थे इस मुकाबले में। 240 के जवाब में 222 मुंबई का जवाब, 18 रनों का फासला, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बैक टू विनिंग वेज 18 रनों से जीत सुनिश्चित करते हुए मुंबई के घर में। पॉइंट्स टेबल पे थोड़ा सा उछाल आएगा आरसीबी के लिए और उम्मीद जगेगी कि एक बार फिर से पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के और करीब आ सकते हैं। 8 पे रॉयल्स हैं ऑन टॉप, पंजाब किंग्स ऑन 7, दोनों अभी तक अपराजित हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तीसरी जीत सुनिश्चित हो चुकी है मुंबई इंडियंस को हरा के, जिन्होंने झेली अपनी तीसरी हार इस सीजन की। हमारे शो से Pick of this performance, just lost too many wickets in the middle, didn't you? Yes, and at the same point of time, I think we conceded way too many as well. When you look at your bowling, you mentioned conceded too many big overs. There were at least 4 overs over 20. I think that was always going to be catch-up. I think it's been last couple of games as a bowling unit, or even as a batting unit, we've been quite catching up to the game rather than leading the game. Really need to reflect, really need to see what best we can do and how can we get that momentum and that click which we require. So, we have a couple of days off from here and we play again. We've generally met many games here being high scoring. Do you feel that the toss will still be a kind of bat second and chase just the way to go? To be very honest now, a lot of things need to be rethink. Definitely it's not working. Couple of games we have won the toss, but maybe we need to see what are the other options as well as a batting group or bowling group we can have. But looking at the kind of wicket it's playing, if we can bat as well, that would be good. But we need to still play cricket. We need to still bat well. We still need to bowl well. And if we do that, irrespective of the toss. And then with regard to tactics, and I know just spirits is one you save, and I know you guys would use the swing up at the front. But what is it particularly discussed with the power plays yielding so many in every game that's played? How you go about that? I mean, that's what we are planning, or we are speaking about and talking about. How do we get some momentum in power play? Because if you've seen batting, bowling, both, we are kind of trying to catch up in power play. As you said, a lot of options will be asked and thrown. We'll see what we can do in the next game. Now, one positive Rutherford playing the way he did. He could be very handy for you with the games coming up. Yes, when we got him, it was always exciting for us. We always knew the kind of potential and the kind of power he has. And the way he batted, it just gives us extra cushion and at the same point of confidence that if we want to make some changes or we want to see that what this team requires, we can definitely do it because the way he's batting. Okay, tough luck today. Hardik is on a long way to go. Thank you. गूगल सर्च किया है मोड मैच सेंटर लाइन में हार्दिक पांड्या से सबसे पहले सुनने का मौका मिला। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। 18 रनों से जीत आई है आरसीबी की टीम के लिए। 18 सीजन का इंतजार जो है समाप्त हुआ था उस ट्रॉफी के साथ, और सीजन की शुरुआत भी बिल्कुल उसी अंदाज में। फिल्सॉल्ट, रजत पाटीदार, विराट कोहली के अर्शदीप डेविड की एक आतिशी पारी, हरभजन सिंह हमारे साथ शो में जुड़ते हुए मौजूद है। 240 बोर्ड पे हो तो 9.5 आउट ऑफ 10 यू विल प्रोबब्ली से टीम जीत जाएगी। मुंबई इंडियंस की टीम सामने थी तो उम्मीद फिर भी बाकी थी। कैसे देखा आपने इस मुकाबले को? बिल्कुल देखिए, जब आप इतने रन बना लेते हैं ना पहली बारी में 241 रन बहुत ज़्यादा होते हैं और कहीं ना कहीं आप मैच को बहुत दूर ले जाते हैं ओपोनेंट से। वहाँ कोशिश बहुत की मुंबई इंडियंस ने, पर लेकिन कोशिश करते भी बहुत पीछे रह गए क्योंकि इतने ज़्यादा रन है। आपको ना हर बॉल पे प्रयास करना पड़ेगा, और चाहे आपका पावर प्ले कितना भी अच्छा जाए, चाहे 80-90 भी बना दे तो भी आपके पास अभी वो 150 रन की गुंजाइश है। 80 गेंदों में आपको फिर बनाने होते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है गेंदबाजी पे काम करना होगा। गेंदबाजी मुंबई इंडियंस की ऑन पेपर बुमराह के अलावा मुझे लगता है कि कोई भी गेंदबाज
अपना काम कर रहा है, ट्रेंट बोल्ट हो या फिर चाहे और उनके साथ जितने भी खेले हो। आई थिंक बुमराह को अगर छोड़ दे तो बाकी गेंदबाजों ने अपना काम किया नहीं, बहुत ज़्यादा रन खर्च कर दिए। और एक बात और आप सबको बताना चाहूँगा कि उस समय जब वो गेंदबाजी कर रहे थे मुंबई इंडियंस, तब बॉल गीली नहीं हो रही थी। गीली नहीं होने के बावजूद उनके स्पिनर का आप अगर आकलन करो आरसीबी के स्पिनर से, तो आपको पता चल जाएगा कि मैच आप कहाँ पे आ रहे हो। मिडिल ओवर्स का आपने आंकड़ा देखा जहाँ पे 116 रन बनाए थे आरसीबी ने। जैसा आपने कहा तब बॉल गीली नहीं थी, 85 रन आए मुंबई के लिए। ऑफ कोर्स विकेट्स का गिरना जो है नेवर इजी, उसके बाद मोमेंटम मेंटेन करके रखना। लेकिन हार्दिक ने जो बात कही बाजूबा, टॉस जीता आपने गेंदबाजी का फैसला खुद किया, उसके बावजूद ये रिजल्ट आना, तो अगर गेंदबाजी में धार नहीं है तो क्या आप एक पैटर्न देखेंगे कि मुंबई पहले बैटिंग करना शायद पसंद करे? देखिए बैटिंग करें या बॉलिंग करें पहले, लेकिन आपके पास जो है वो सोच सही होनी है बहुत जरूरी, जो कि मुझे इस मैच में दिखी नहीं। एक तो बॉडी लैंग्वेज जो मुंबई इंडियंस की थी, इससे कहीं बेहतर मुंबई इंडियंस की बॉडी लैंग्वेज होती है, जो अक्सर वो हम देखते हैं जब वो अपने घर पे खेलते हैं। तो टाइगर की तरह है, ये बहुत कम टीमें हैं जो एक किले को आके भेजती हैं, और लगातार यहाँ पे अगर आके टीमें जीत रही हैं तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई चीज़ जो है वो आप बाकी टीमों से बेहतर नहीं कर रहे हैं, ताकि वो बाहर की टीमें आके यहाँ पे जीत रही है। मुझे लगता है कि जो बॉडी लैंग्वेज इससे कहीं बेहतर हो सकती है, जो नहीं थी। और साथ ही जो स्पिनर का मैंने आपको पैटर्न बताया है कि स्पिनर ने गेंदबाजी अच्छी नहीं करी है, चाहे मार्कंडे हो चाहे सेंटनर हो, दोनों ने कुल मिला जुला के बहुत ज़्यादा रन खर्च कर दिए हैं और विकेट भी नहीं चटकाए हैं। मुझे लगता है कि उस पर काम करना बहुत जरूरी है। अगर वो अब तवज्जो नहीं देंगे तो फिर कब देंगे, क्योंकि 241 रन चाहे वो कितना भी गीला मैदान हो। मैंने बात करी थी कि बहुत गीला मैदान है, और अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो वाकई जो आप बॉल देखोगे ना वो सोप की तरह बन जाएगा। बट उसके बावजूद कुणाल पांड्या का स्पेल वाज अ डिफरेंस इन दिस गेम। यू नो ही शोड लॉट ऑफ हार्ट, ही शोड कि मैं तरीका ढूंढूंगा कैसे गेंदबाजी करी जाती है। जरूरी नहीं कि आप स्पिन के साथ ही आउट करते हो, अपना दिमाग लगाना बहुत जरूरी है। आप शार्दुल ठाकुर के 2 ओवर देखिए, या फिर आप बाकी उनके ट्रेंट बोल्ट 50 रन उन्होंने खर्च करे। तो ये बहुत अपने आप में बड़ी बात है कि इतनी बड़ी गेंदबाजी, इतने बड़े गेंदबाज वहाँ पे बहुत ज़्यादा रन दे रहे हैं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं पहली पारी में आप मैच हार गए थे। थोड़ा सा ब्रेकडाउन करते हैं बाजूबा की कैसे आरसीबी ने लगातार दूसरे सीजन में अब मुंबई को मुंबई के घर में हराया। कौन से वो मोमेंट्स थे जहां से मैच पलटने लगा, थोड़ा सा रेखांकित करते हैं उन्हें। Amazon और दिखाओ गेम चेंजिंग मोमेंट्स। सबसे पहले बाजूबा मिड सेंटर का ओवर आता है। वेरी ब्रेव कि आप एक स्पिनर को लगाएं फिल सॉल्ट के सफ्तार के सामने पावर प्ले के दौरान वो 3 छक्के पहली 3 गेंदों में। डेफिनेटली एक मोमेंट में से एक मोमेंट आपके लिए भी। बिल्कुल देखिए ये सीधा बैकफुट पे डाल दिया, और स्पिनर गेंदबाजी करने आए तो मैं समझता हूँ कि वो मूव अच्छा था, बट लेकिन वो गेंदबाजी करे तो सही उस तरीके की। पहले गेंद अपने पैर में जो बिल्कुल स्क्वायर के ऊपर छक्का, फिर बिल्कुल ऊपर गेंद जहाँ बल्लेबाज को कुछ करने की जरूरत नहीं, मिडॉन के ऊपर छक्का, फिर दोबारा छोटा गेंद। तो कहीं ना कहीं वो जो डर था ना, वो डर बहुत ज्यादा था। वो बॉल जो था वो मुझे लगता है इससे बेहतर डाल सकते थे, स्पिन करवाया नहीं। और spinners are supposed to spin the ball. If you don't spin the ball, ऐसे होगा ये या तो शॉर्ट किया बॉल उनको, और यहाँ बिल्कुल फुल किया। ये देखिए मार्कंडे हो या फिर ये आप सेंटर की बात करें, आप लेंथ पे जरा नजर रखिए, या तो बिल्कुल फुल है और यहाँ शॉर्ट है, जिसके कारण बड़ी आसानी से वो रन बन गए। बल्लेबाज को प्रयास करवाना जरूरी है कि आइए कदमों का इस्तेमाल करिए, थोड़ा सा बॉल को धीरे डालिए। अगर धीरे नहीं डाला तो लेंथ आप वो रखिए कि जहाँ बल्लेबाज को कुछ करना पड़े, यहाँ तो कुछ करना नहीं पड़ा। हार्दिक पांड्या की सोच सही थी कि स्पिनर को लेके आए, बट बताओ स्पिनर आप स्पिनर की तरह गेंदबाजी करें तो ना। अगेन क्योंकि स्पिनर्स को आपने हाईलाइट किया, जरा सुयश के उस ओवर की तरफ चलते हैं जहां एक नहीं 2 विकेट्स में 4 गेंदों के अंतराल में मिले। तब तक बॉल गीली हो चुकी थी, खूब सारी ड्यूटी जो आपने मिडनिंग शो में भी हमें दिखाया था, बताया था। इस ओवर को कहां रेट करेंगे आप इन टर्म्स ऑफ गेम चेंजिंग मोमेंट्स? देखिए बहुत बड़ा मोमेंट था, और ऐसी पिच के ऊपर जहाँ पे पता है बल्लेबाजी आसान है, बहुत बढ़िया है। उन्होंने देखिए कितना दूर रखा बल्लेबाज से बॉल, और ये जानते हैं इसका स्ट्रॉन्ग जोन जो है वो मिड विकेट स्क्वायर लेग मिडॉन है, और वहाँ वो
अपने आप को मौका दिया और यहाँ पे भी तिलक स्वीप अच्छी खेलते हैं लेकिन हाथ पूरा खोलने का मौका नहीं मिला। स्वीप तब अच्छी लगती है जब आपकी आंख के सामने बॉल हो, जब आपके टांग पे बॉल हो तो फिर वहाँ पे आपका हाथ खुलता नहीं है, आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते हो कि कहाँ स्वीप मार रही है। तो 2 गेंदें उस ओवर में ये ऐसी गेंदें जहाँ पे बहुत सारा जो मैच इनके पाले में डाल गए थे। ये बहुत अच्छी गेंदबाजी करी उन्होंने। ठीक है, रन जरूर गए, 47 रन गए हैं, बट ये ना भूलें कि वो 2 विकेट जो ले गए हैं वो काफी हद तक प्रोटेक्ट कर रही है एमआई की चेस को। एक और इंटरेस्टिंग आंकड़ा है इसमें कि जब आरसीबी वो 240 रनों की पहाड़ी खड़ी कर रहे थे मुंबई के सामने, कम से कम 6 ऐसे ओवर थे जिसमें 15 या उससे ज्यादा रन बनाने में सफल रहे। इवेंचुअली पहुंचे, इसे 3 ऐसे ओवर जो 15 या उससे ज्यादा रन लेके आए, मोस्टली उस रन चेस के दौरान रिक्वायर्ड रन रेट 15 के इर्द गिर्द या उससे आगे जा रहा था। तो बहुत बड़ा कारण कि जैसे ही कप्तान की हुई एंट्री मैच बदल गया। Coolest performer of the match, brought to you by Lloyd. युवा एक समय 500 से ऊपर का स्ट्राइक रेट था, पहली 4 गेंदों में 22 रन। रजत पाटीदार पिछली बार यहाँ आए थे तो प्लेयर ऑफ द मैच थे। ये क्या एक अलग रजत पाटीदार का रोल है बिल्कुल, जो उन्होंने खुद ही बनाया है इस टीम में, जहाँ पे आते ही दनादन शॉट्स लगते हैं। भाई जितनी तारीफ करें इस कप्तान की उतनी कम है। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इस तरीके से मोमेंटम गेन किया जाता है। वो कोई इनसे पूछे, आज भी पहली गेंद पे आए हैं, पहली गेंद पे आके वो चौका लगाया हार्दिक पांड्या की गेंद पे। उसके बाद अगले 3 गेंद खेले स्पिनर के, उन तीनों पे छक्के थे 3। तो आप देखिए ना ये मोमेंटम किस तरीके से चेंज हुआ। आज भी 20-22 गेंदों में 50 के ऊपर रन बना के गए और ये एक ऐसी पारी जो पूरा का पूरा मोमेंटम और गेम आरसीबी की झोली में डाल गए और यहाँ से ये तो सुनिश्चित कर गए थे कि वो आउट भी हो जाए तो भी 240-250 तो बनेंगे। अगर वो रह जाते तो हो सकता 10 रन और बन जाते। बहुत कमाल खेल रहे हैं, जितनी तारीफ करें उतनी कम, क्योंकि हम बहुत बार ना ऐसे खिलाड़ियों की बात नहीं करते हैं जो गेम में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। वो गेम मुझे याद आता है जहाँ 250 भी इन्होंने बनाए थे, वहाँ भी वो गेम चेंजर यही थे। पाटिकल ने हालांकि वहाँ की 50 रन बनाए थे, बट इन्होंने शुरुआत करी थी आके उस तरीके से शुरुआत करी थी कि वहां से सुनिश्चित था कि वो 250 रन बनना। आज भी कमाल की बल्लेबाजी, ये पहला शॉट और उसके बाद तो रुकने का मामला था। Ladies and gentlemen, welcome to the post-match presentation for the Tata Indian Premier League for 2026. A brilliant match here tonight. So all the Royal Challengers are making a rig it up over the Mumbai Indians. The BCCI would like to say a huge thanks to the sponsors of the Tata IPL. They are Tata, Angel One, Rupe, Google AI Mode, Wonder Cement, Seat and Kingfisher. If I can now